Good morning, everyone. Aloha, welcome. Welcome to this beautiful morning. I hope you all are doing well. आ जाओ कैमरा पे फटाफट फटाफट Very nice. Today's session is very special because it's a mixed session. Today we are having people who are on my 6 years membership journey. We have members who are on my uh, 1 month of deeper Akashic consciousness course, and we also have our boot camp people. So it's a collective class. And why I'm doing this collective class? Because it is a very important thing that we all needed. ठीक है आज हम जो करने वाले हैं it is very much needed for everyone because this is my personal experience. I've been doing a lot of things, but I was missing on this one. So when I started working on this particular thing, a lot of things changed in my life. तो मुझे लगा why not I add this into my all the courses, all the you know funnels, right? So uh how many of I think most of you have attended the boot camp. पुराने वाले भी everybody has attended boot camps, no? You know that boot camp used to be 3 days journey, right? This is the first time the current boot camp people, they are lucky. They are getting 4 days, right? So they are getting this added booster. So hand raise करो boot camp वाले original students. ऐसा ऐसा hand raise करो. Just raise your hand like this. I mean ऐसे ही hand raise कर दो. ठीक है? Right? How many of you know? Others can tell it in the chat box how lucky they are. They're getting this morning session as a part of the boot camp only. And today, what we are going to do is we are going to work on our ancestral wounds. So, before going into their first Akashic journey, we are cleansing our ancestral wounds. ठीक है? तो tell me, बाकी के बताओ इनको how lucky they are in the chat box. They're getting it in the very first go. Because some of you have seen the magic of this. है ना? बिकॉज अपनी कर्मा क्लिनजिंग और अपने इशू रिजॉल्वेंस से पहले कभी कभी हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को क्लिनज करना होता है जो हमारी है ही नहीं, राइट? तो आज हम वही करने वाले हैं, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट गो इनटू वेरी स्पेशल ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन. इट्स अ वेरी सिंपल छोटा सा मेडिटेशन विल डू टुगेदर, क्योंकि दिन का पहला पहर है और हमको सबसे पहले शुरुआत करनी है विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड. आर वी ऑलरेडी? यस, चलिए, वेरी नाइस. तो स्पाइन सीधी कर लीजिए जरा और एक्टिव हो जाइए. मॉर्निंग में अगर आप लेथार्जिक रहेंगे तो आपको नींद नहीं आ जानी है, इसलिए फटाफट से सीधे होकर बैठ जाइए. Close your eyes and let's do this together. Okay. Okay. Your eyes. You are the most beautiful creation of the divine. Universe have given you a lot many gifts to enjoy in this physical realm. Think of all the beautiful things you have seen in your life and feel gratitude for all of them. Say thank you for your beautiful body, your brain, your enlightened mind. You know you are unique. So say thank you for your unique gifts. Everything you have different from others. Say thank you for your unique personality. You have come
this far on your skills, on your hard work. So say thank you to Divine for all these efforts. Say thank you to Divine for all the loving support it always provided you whenever you were in need. Whenever there were dark times, universe lent its hand to you and send you some angel. Say thank you to all those hidden angels in your life. Say thank you to the food you eat. Say thank you to the air you breathe. Say thank you to the water you drink. This is a blissful life you are gifted with. Realize its worth and be thankful for all that you have. Now you can gently open your eyes and remind yourself to say thank you whenever there is a good happening around you. Superb. So now we have got the morning punch of energy. Now we are ready to go into the deeper things, right? So why we are doing this? How many of you think that we are struggling in some part of our life? It can be relationship, it can be money, it can be health, and sometimes we feel that there is much more to life. There are some people who don't know, but we are carrying curses. We are carrying things which are coming from somewhere and we don't know the source of it, right? बहुत सारे लोग हैं ऐसी blessings भी लेके चल रहे हैं. You are suffering in your life and then कहीं से तो कोई help मिल जाता है. It can be the blessings that you are carrying from your bloodline. ठीक है? पर हम बड़े शाने लोग हैं ना, हमको blessings चाहिए पर हमको burdens नहीं चाहिए. How many of you know that? कि हमको ब्लेसिंग्स चाहिए पर हमको बर्डन्स है. हमको अपने पूर्वजों की जायदाद तो चाहिए पर हमको उनके कर्सेस कैरी नहीं करने हैं. ठीक है? एंड कैन आई टेल यू वी ऑल हैव अ फ्री विल. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वी हैव अ फ्री विल? वी हैव अ डेस्टिनी, राइट? बट वी आल्सो हैव अ फ्री विल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. सो जब आप अपनी फ्री विल को चूज करते हो, जब आप एक चॉइस करते हो कि भाई मेरे को ये कैरी नहीं करना है, ये बैगेज कैरी नहीं करना है, और आप उसके लिए इंटेंशन पुट इन करते हो, तो थिंग्स वर्क. आज सुबह भी आई वाज रीडिंग इन द यूनिकॉर्न प्राइम वाला ग्रुप. अनन्या हैज रिटन समथिंग, राइट? सो दिस इज हैपनिंग आफ्टर ऑल दीज एंसेस्ट्रल सेशंस. ठीक है ना? Unicorns can guarantee this in the chat box. How many of you, especially people who are in wealth activation, how many of you have seen the changes in your energy after the ancestral healing session? Give me in the chat box. हाँ, मैंने तो फ्री विल से जनरेशनल कर्स ब्रेक करना है. वेरी नाइस. ठीक है? तो आज हम उसका एक बीज बोएंगे. ठीक है? एंड कैन आई टेल यू, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हीलिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, राइट? मैं आपको अपनी जर्नी ड्यूरिंग दिस सेशन में अपना भी बताऊंगी. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, मेरे को हमेशा लगता था इतना करने के बाद भी कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग, कुछ मिसिंग है. एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस लेटली. जब मैंने अपने एंसेस्ट्रल वुंड्स पे काम करना शुरू किया, उसके बाद चेंजेस इतने ड्रास्टिकली, स्पेशली इन माय मनी रियल्म, क्योंकि मे बी आई वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ मनी वुंड्स फ्रॉम माय एंसेस्टर्स, राइट? एंड इट चेंज ड्रास्टिकली लाइक विद इन डेज. ठीक है? और मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी ये बताऊंगी वेयर आई कुड फील कि अरे सच में चेंज हो गया, राइट? सुपर, राइट? तो आज इसको समझेंगे. आर वी ऑल रेडी टू डू दिस? ठीक है? और जो लोग वेल्थ एक्टिवेशन में थे,
अगेन कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है, इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुपर। सो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड what when we are talking about ancestors, what we are talking about basically, ठीक है। So I just want all of you to see this screen for a while, okay। जब भी हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, आपने जनरली देखा होगा, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? पवन विजिबल है? वर्षा, हाँ, ओके। तो जब भी हम कभी कुछ अच्छा बुरा करते हैं, हमने हमेशा एक बात सुनी है कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, इतना कमाना है कि अगली 7 पुश्तें बैठ के खाएं, है ना। और जब भी कर्सेस की बात होती है तो बोलते हैं ना, तुम्हारी 7 पुश्तें भुगतेंगी। हाउ मेनी यू हर्ड दैट? We always talk about 7 generations. Why we talk about 7 generations? Because 7 generations do have a direct impact on our energy body, ठीक है। दैट इज वाई ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीजें बोलते हैं ना, वो किसी एक रीजन से बोलते थे, ठीक है। सो 7 generations हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अस। सो नाउ व्हाट कम्स इन द 7 generation, जस्ट लुक एट द चार्ट, ठीक है। सो यू हैव 2 parents, then 4 grandparents, then 8 great grandparents, then 16 second generation great parents, ठीक है, then 32 third generation great grandparents, 64 fourth generation great grandparents, and 128 कुल मिला के हो गए आपके फिफ्थ जनरेशन ग्रेट पेरेंट। देखो अब कितने लोग हैं जिनके वूंड्स आप कैरी कर रहे हो, कितने जनरेशन, कितने लोग हैं जिनकी मेमोरीज आप कैरी कर रहे हो। जस्ट just look at this chart. So you are not actually carrying the energy of one person or the karma of one person. You are carrying the karma of these many people, ठीक है। कैसा लगा सोच के? मजा आया सोच के? और इन 128 लोगों ने अपनी लाइफ टाइम्स में क्या क्या किया होगा, अच्छा बुरा। और एक और चीज है, एक और पॉसिबिलिटी है, आपको पता है इन 128 में आप 2 बार या 3 बार भी हो सकते हो। Sometimes people are their own ancestors. How many of you know that? You could have been your own great 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 grandmother or great 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 grandfather. Yes? And whatever you have done or created, or these people have done or created, उसका फल धीरे 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 आपको भुगतना पड़ता है। जैसे अगर एक इंसान ने कोई उधार लिया है, ठीक है, एंड दैट पर्सन पासेस अवे, वो कौन भुगतता है? उधार कौन चुकाता है? उसकी अपकमिंग जनरेशंस, ठीक है। और अगर किसी ने एक जायदाद खरीदी है, धरती खरीदी, उसका फायदा किसको मिलता है? उसकी अपकमिंग जनरेशंस को। तो फल आप भुगत रहे हो, तो फिर कर्मा भी आप ही भुगत रहे हो, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? और पैल्पिटेशंस कहाँ किस किस को शुरू हो गई कि भाई अपने में तो काम करना है, इन पे भी काम करना है, ठीक है। बट कैन आई टेल यू, दिस इज वेरी वेरी इजी टू डू। आज अगर ये रियलाइजेशन हो गई है, तो इसको करना भी उतना ही आसान है जितना इस रियलाइजेशन को फील करना, ठीक है। तो हम जुड़े हुए हैं अपने एंसेस्टर्स से विदाउट 2 एनर्जी सेंटर्स, ठीक। हमारे बॉडी में 2 ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं, 2 ऐसे चक्रस हैं जो डायरेक्टली हमारे एंसेस्टर्स से जुड़े हुए हैं। पहला एनर्जी सेंटर है हमारा रूट चक्र, ठीक है। क्योंकि ये एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ पे हैं? इसी रियल में है ना, अर्थ रियल में। स्पिरिचुअल रियल में तो नहीं है ना। इस बॉडी में आने की वजह से, इस परिवार में पैदा होने की वजह से हमें ये एंसेस्टर्स मिले हैं ना। तो ये एनर्जी किस चीज की है? हमारे रूट चक्र की है ना। क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जी है ना। हम रूट चक्र को क्या बोलते हैं? फिजिकल सेंटर, ठीक है। तो ये फिजिकल सेंटर की एनर्जी है। तो जितने भी आपके एंसेस्ट्रल कर्मा, वुंड्स, बैगेजेस हैं, वो कहाँ से कनेक्टेड है? गिव मी इन द चैट बॉक्स। कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे रूट चक्र से, ओके। एंड सेकंड,
दूसरा एनर्जी सेंटर है आवर सेक्रल, बिकॉज सेक्रल इज द वूम्ब एनर्जी। ठीक है, जो हमारा सेकंड चक्रा है दैट इज आवर वूम्ब एनर्जी, जहां से हमारे मदर वुंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट। सो दीज टू चक्रास, आवर रूट चक्रा and our sacral chakra, they are directly connected to our ancestors। तो अगर हमने यहां से ये एनर्जी को बाहर सेंड कर दिया कि हमको ये एनर्जी जो कि ब्लॉक्ड है या रोक रही है हमें कुछ करने से, और कैन आई टेल यू, यही दो चक्रास हैं जो हमारे पैसे के लिए और लग्जरी से भी संबंधित है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? ठीक है, क्योंकि जो रूट चक्र है वो हमारा फिजिकल सेंटर है, तो वो बेसिक मनी से और बेसिक नीड्स से संबंधित है ना, रोटी कपड़ा मकान एंड ऑल ऑफ दैट। और जो हमारा सेक्रल चक्र है वो हमारी क्रिएशन से संबंधित है और लग्जरी से संबंधित है। और अगर ये दोनों चक्रास में अपनी ब्लॉकेजेस के अलावा एंसेस्टर्स की भी ब्लॉकेजेस बैठी हुई हैं, तो भाई क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? हम तो काम कर रहे हैं पर पैसा नहीं आ रहा, हम तो मेहनत कर रहे हैं पर अबंडेंस नहीं आ रही। ठीक है, even I know in this boot camp there's somebody who said that they are trying to conceive but are not able to conceive, that can also be the womb energy। ठीक है, so can be, I'm not solidifying it but can be। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज मैं तुमको डराना नहीं चाहती, पर हो सकता है हमारे किसी इंसेस्टर ने किसी का बुरा किया हो और उसने बोला तेरी साथ पुश्तें भुगतेंगी, और हम भुगत रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब कई लोग बोलेंगे कि अगर सारे भुगतेंगे तो मेरा भाई और मेरी बहन या मेरा ताया जी का लड़का और मेरा वो इतना खुश कैसे है, उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अपने कर्मा भी तो है ना। हो सकता है दैट पर्सन इज कैरिंग अ लॉट ऑफ गुड कर्मा विद हिम और विद हर फ्रॉम द पास्ट लाइफ्स, तो ये जो कर्ज था उसके लिए छोटा हो गया। पर आप ऑलरेडी अपने बैगेजेस भी कैरी कर रहे थे और इसने उसको ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? आप पे बारिश हो रही है फिर टेंशन्स की। Yes? So we are gonna release it. How many of you are ready to release it? But there should be no fear, no guilt, or no grudge against anybody. Okay? So this is what we are doing. Pehle, we are gonna do the chakra tapping simply because tapping plus the spelling, the spell that we are casting are very, very powerful. Okay? The words that we speak and the actions that we do are very, very important. Okay? So let's do it. You just need to simply tap on your legs, which means you are unblocking your root chakra, and say, eyes बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, your wish। Today I'm ready to release all the blockages sitting in my root chakra, which is blocking my abundance, which is blocking my growth, which is blocking my success, that I've been carrying from my ancestors। कोई भी ऐसा कर्स, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज, कोई भी ऐसा फियर, कोई भी ऐसा डॉगमा जो मैं अपने पूर्वजों से कैरी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ, मेरा सक्सेस, मेरी अबंडेंस रुकी हुई है, आज मैं उसको विद लव एंड विद ग्रेस रिलीज करता हूँ। I have no grudge against any of my ancestors, and I also acknowledge that I have received a lot of blessings also because of my ancestors, but I am not ready to carry any baggages of wounds, curses, and blockages from my ancestors. With my own free will, I am choosing to release all that is not serving my energy body. Take a deep breath in and out. Okay? Now tap on your sacral, lower abdomen. Today I cut all the energetic cords from my womb wounds. Anything that I have carried from the paternal or the maternal side, any energy, any curse,
or any heavy energy that is blocking my abundance and my luxury and my prosperity, I'm releasing it with pure love and intention. I do not have any grudge against any of my ancestors, and I know that I've been carrying a lot of blessings because of them as well. But I'm not ready to carry any more baggage in this lifetime. I bow down to all my ancestors who have done the great work in their lifetimes. And know that they have done some mistakes consciously or unconsciously. So today I choose to release all their karmic baggages with my free will. I'm choosing to release whatever is stopping and blocking my success, my growth, and my abundance. I'm ready to release all the heaviness from my womb, and I'm leaving it in this lifetime only. I'm unclearing everything that is stopping me to become my 1000%. I release, I release, I release. Relax. And let it sink in. Just remember, we don't have any grudge against any of our ancestors. They have been doing amazing work in their lifetimes. But sometimes, knowingly, unknowingly, they create karma which affects the entire bloodline. So just that we are going to release. What are you feeling already by doing this? Give me in the chat box. Because people who do energy work, they sense it. Light. Very nice. Yeah? And कितने लोगों को लग रहा है कुछ तो निकल गया यार अंदर से. There was something that got out. Does it include uncles and aunts? All of us, yes. All those, everybody. But majorly parents. But sometimes it's like the family tree also. Sweating, very nice. I've started burping. Whenever you burp, whenever you sneeze, whenever you yawn while working on your energy centers, that's a signal that it works. Awesome, beautiful. चलिए रिलीज कर दीजिए इस एनर्जी को. रिलीज कर दीजिए. इसके साथ अटैच नहीं करना है. Do not cling to energies. Yes. Was yawning at the sacral chakra. I yawned immediately. I was burping. Yeah. Super. Okay. So that was the first activity. And in case, some of you might feel it's fine, it was not much. That means your ancestral blockages are less than the others. If someone of you is feeling very heavy energy, that means you are carrying it. तो आज आपने उसको clear कर दिया with ease and grace. Okay. Now the next thing is, ये आप जब भी करेंगे ये एक्टिविटी, अगर आप अपने से भी करना चाहते हैं तो आप इसको इन द मॉर्निंग ही करेंगे. ओके. विद द सन एनर्जी ही करेंगे. ठीक. इसको रात में नहीं करना है. ये ना बाद में फिर वो सपनों में आए फिर आप डर जाओ. ओके. बिकॉज वी आर कनेक्टिंग टू अवर एंसेस्टर्स नो. सो ये हम इसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ही करेंगे. एंसेस्ट्रल हीलिंग जब भी करनी है, कब करनी है? मॉर्निंग में. ठीक है. तो आप ये टैपिंग जो है, आगे भी जिनको हैवीनेस ज्यादा फील हुई, इनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, या कई बार हमको पता भी होता है कि भाई मेरे दादाजी के दादाजी जमींदार थे और कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा भाई जिसके गड़बड़ है ना. तो यस. हम क्या बोले, हमारी तो बर्ब बता देती है रिलीज हो गया है. माधवी, अच्छा कोई बात नहीं, बट डे टाइम है ना, स्टिल सेट नहीं हुआ ना तुम. अच्छा यूएस वाले तो इन जनरल अगर आपको अकेले में भी करनी है तो उसको मॉर्निंग में ही करना है. ठीक है. चलिए. सेकेंड थिंग. नाउ दिस इज वेरी 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 स्पेशल. ठीक है. कल हमने बात की थी ना, आगे भी बात करते हैं ये नाड़ी विज्ञान की, द नाड़ीज. ठीक है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ नाड़ीज एंड दीज नाड़ीज आर नॉट नर्व्स बाय द वे. ठीक है. हिंदी में देयर इज समथिंग कॉल्ड नाड़ी विज्ञान, बट नाड़ी इज नॉट नर्व्स.
हम जनरल भाषा में नर्व्स को नाड़ियां बोलते हैं ना, बट इन नाड़ी विज्ञान द नर्व्स आर बेसिकली द हिडन और द इनविजिबल एनर्जी pathways in our body. ठीक है, according to Vedic sciences. And there are so many, like thousands of energy pathways in our energy body. I'm not talking about only about the physical body, but energy body. ठीक है, and there is a nadi which is directly connected to ancestors also. तो आज हम उस पे भी काम करने वाले हैं. ठीक है, so it is the nadi coming from the back of our, मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ यहाँ पे, spotlight. Okay, there is an energy pathway that runs from the back of our ear, like goes here into our arm and ends here. Okay, कहाँ खत्म हो रही है? हमारी रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के मिडल में. अब यहाँ पे दबा के देखो जरा इस पॉइंट को. ठीक है, जिन लोगों को यहाँ पे पेन फील हो रहा है, दैट मीन्स कुछ एंसेस्ट्रल गिल्ट्स या ब्लॉकेजेस हैं. ये दबा के देखो जरा जोर से. ठीक है, मैंने जब शुरू शुरू में ये करना शुरू किया था, मैं यहाँ पे हाथ लगाती थी और लाइक ओह, इतना दर्द होता था. अब मैं आज है ना दबा रही हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग बिकॉज आई वर्कड इट आउट. ठीक है, सबको दिख गया? फिर से चेक करेंगे यहाँ से. एंड द सेम नाड़ीज फॉर मनी, दैट इज व्हाई वी आर कैरिंग अ लॉट ऑफ यस. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आना है और इधर यहाँ पे चेक करना है. ठीक है, यस, वेरी लेस पेन और प्रेसिंग अगेन एंड अगेन. नो, अच्छी बात है. जिनका नहीं है, कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन ऑलरेडी वर्किंग आउट ऑन दिस. ठीक है, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड. वेरी गुड. ठीक है, स्टिल वी कैन थैंक them for not having giving us any gift of blockages, right? Yes, बढ़िया. जिनको नहीं पेन है, congratulations, you are not carrying any heavy or major energy from the from your ancestors. That's a good one. ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? Energetically you have to just fetch out energy from here, and you have to imagine like a havan kund or a light burning in front of you, and you have to put it there. Okay, just do this. And especially people who are feeling the pain, उनके लिए है. जो नहीं कर रहे वो सीख सकते हैं दूसरों के लिए. ठीक है, चलिए. And you can also say, I'm releasing everything that is not working for my highest good. With all the respect toward my ancestors, I'm releasing everything that is not working for my highest good. With a lot of respect to my ancestors, I'm releasing everything that is not working in my favor. I become a burp machine every time I work with my energy. So bad. Yes, does that mean ancestral baggage having pain in the right side? Yes. Yawning, burping strongly. Very nice. Okay. अच्छा, ये करते करते वक्त अगर किसी को यहाँ पे पेन अभी शुरू हुआ, किसी ने फील किया बैक पे पेन, बैक पे स्ट्रेन, अगर किया है तो वो भी फेंक दो. People who are feeling a lot of strain on their back, especially the upper back, and if you're not working like, होता ना कि ऑफिस में काम करते बैठे रहते हैं, अगर आपका वैसा काम नहीं है पर फिर भी आपको ये बैक का पेन, स्पेशली अपर बैक का पेन रहता है, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ईदर फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और फ्रॉम योर ओन लाइफ टाइम्स, पास्ट लाइफ टाइम्स. ठीक है, तो उसके लिए भी यू कैन जस्ट, हाँ नेवल में फील कर रहे हो तो फिर वो वही है. ठीक है, अपर बैक पेन. ठीक है, इसको भी यू कैन जस्ट रिलीज इट. आपको लगा ये क्या कर रहे हैं, बट योर बॉडी नोज द इंटेंशन. ठीक है, रिलीज इट, रिलीज इट. ओके, वेरी नाइस. हाउ मच release you've done? How many of you are feeling relaxed? 10, 20%? Yeah, good, very nice. So now it is time for
अस टू एक्नॉलेज, बढ़िया, जिनकी नहीं है बहुत अच्छी, आंखें बंद हो रही है, वेरी नाइस। जब रिलीज होता है तो यू फील गुड। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू पे gratitude to our ancestors for leaving us the legacy of goodness, because there were a lot of good ancestors also we had. How many of you know that? ठीक है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो संत महात्मा धर्मात्मा हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने बहुत अच्छा कुछ किया हो, बहुत काइंड हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ब्रेनी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत, जिसके पास बहुत सारे आइडियाज हों, राइट, मनी क्रिएशन का आइडिया हो। सो now what we are going to do is we are going to bring back that legacy, because that legacy हमारे को हक है उस पे, being in this family line, हमारा हक है ना उस लेगेसी पे। तो अब आपने क्या करना है, अपने सेक्रल पे हाथ रखना है, लोअर स्टमक पे और हार्ट पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड ऑन योर लोअर abdomen which is your sacral, right hand on your heart, and close your eyes and say, all my dear ancestors who've been working in their spiritual realm, or who have been worked in their physical realm for the growth of humanity, for the abundance, for the goodness of other people, for their own spiritual success or their financial success, I want you to bless me today. All my ancestors who were great in anything that they've done, who were intelligent, kind, abundant, prosperous, joyful, happy. Today, I want all of you to bless me. I really want to carry the legacy of happiness, prosperity, abundance for not only myself, but also for my upcoming generations. Today, I own with grace all the good things, all the high frequency energy from my bloodline. I claim my part of the goodness. I claim my part of the abundance. I claim my part of the intellect. I claim my part of the knowledge so that I can give it to the upcoming generations in my bloodline, so that I can become a healed ancestors for my upcoming generations. I own it with grace and I bow down to all my great ancestors. Let it sink in and come out. You must remember, whatever you have done today, you are not doing it only for your own happiness. Can I tell you, if this works, अगर ये काम कर गया, तो आपकी आने वाली जनरेशन आपको एज अ गुड एंसेस्टर याद करेंगी। ठीक है, वो आपको याद रखेंगे एज अ हील्ड एंसेस्टर। ठीक है, तो जब वो इन्वोक करेंगी ना ग्रेटनेस वननेस, तो वो आपकी बात कर रही होंगी। हाउ आर यू फीलिंग राइट, नाइस एंड हैप्पी ऑलरेडी, वी जस्ट थिंकिंग दैट, राइट? You are not only leaving them the money or the tangible things. You know what you are going to leave for them is high frequency, is healed energy, and they are going to thank you. और हो सकता है आपके ये करने से उन बेचारों के आने वाले दुख कम हो जाए। ठीक है, how am I feeling great about this? I am already feeling so much good about it. The my smile can tell you, है ना? Yes, beautiful. Exactly, right? So today you don't know, अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चीज समझ आई या कुछ को नहीं आई. It will start working for you. It will really, really start working for you. And some of these people who have done this last Sunday, we've done a little longer practice for this, and they instantly started seeing changes. They started getting money from hidden sources. Stuck money is coming out. कहाँ कहाँ से चीजें खुल रही हैं, right? They've been experiencing this. This works, right? If you
create that trust into the universe, into the energies, they really work, right? Yeah, Priyanka had to say something. Yeah, please. Please go ahead, Priyanka. हाय मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning. मैम एक चीज बताइएगा, लेडीज के लिए जैसे मैं अभी फील कर रही थी तो मुझे एंसेस्टर समझ नहीं आ रहा था, अपने इन लॉज वाले एंसेस्टर्स भी अब तो मेरे ही एंसेस्टर्स हैं और मेरी Hmm. मेटरनल साइड से भी मेरे एंसेस्टर्स हैं, तो नहीं, हमें कौन से your ancestors are your parents के parents. So that's your bloodline. ठीक है? अच्छा, क्योंकि शादी के बाद मैम जब हम श्राद्ध वगैरह निकालते हैं वो तो अपने इन लॉज की साइड से यार वही सबके निकालते हैं। यही बात है कि हम बेसिकली जो डीएनए कैरी कर रहे हैं ना, वो अपने इन लॉज का नहीं कर रहे हैं। ये हम्म। पता है एक बहुत बड़ा झोल है, इसको सही कहूँ नहीं कहूँ, आई कांट say that, can be controversial, but our ancestors belong to us, to this body. ठीक है? Of हम्म। course, when you become one with a person, when you become a part of a family, their auric field do, you know, affect us. ठीक है ना? अगर आपके हस्बैंड वो सारा चीजें कैरी कर रहे हैं, तो उसका ऑरिक एनर्जी तो आप पे भी जाएगा। ठीक है? बट जब हम अपने डीएनए पे काम करते हैं या हम अपने एंसेस्टर्स पे काम करते हैं, वो वही है जो हमारी बॉडी में, हमारे डीएनए में है। ठीक है? तो वहां पे हम अपने एंसेस्टर्स पे काम कर रहे हैं, राइट? बट ये भी है, जब हम अपने वाले पे काम करें तो हमारा और एक फील्ड उन पे भी तो जाएगा ना, एंड यू कैन इंक्लूड देम इन द प्रैक्टिसेस। ठीक है? और यस, जो हमने लास्ट में प्रैक्टिस किया है, ठीक है, जस्ट एन इन्वोकेशन, सो यू कैन डू इट ऑन देयर बिहाफ्स। सो इफ माय, बिकॉज अब आपके बच्चे तो वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, वो तो आप दोनों के पेरेंट्स, आपके दोनों के वुंड्स कैरी करेंगे ना। ठीक है? जैसे हम अपने मदर और फादर दोनों के कर रहे हैं, आपके बच्चे आगे वो कैरी करेंगे। तो आप उनके लिए वो इन्वोकेशन कर सकते हैं, दैट आई डोंट वांट माय किड्स टू सफर, सो वेयर एवर इट इज कमिंग फ्रॉम, टू वॉट एवर इंसेस्टर्स इट इज, ठीक है, आई एम releasing all the heavy energy and I'm just seeking blessings. So that you can do. But when you are working on the energy body, that you are doing it for your thing. Yeah. Ha. Very nice. Yes. It's like after marriage, in-laws will give importance to the ancestral lineage. Yes. पर करना चाहिए, एटलीस्ट एनर्जी वर्क तो कर ही सकते हो। या जब आप इवन श्राद्ध वगैरह भी कर रहे हो, तो निकाल दो यार अपने अपने एंसेस्टर्स के नाम का भी, क्या जा रहा है? डोंट यू डोंट नीड टू टेल देम दैट आई एम डूइंग इट। ठीक है? एक एक पूरी तो निकालनी है ना, निकाल दो, क्या क्या जा रहा है? ठीक है? सो यस, यू कैन डू इट, बट दिस इज एग्जैक्टली ट्रू दैट यू आर कैरिंग दिस सोल, यू आर कैरिंग योर कर्मा। योर मदर इन लॉ एंड योर फादर इन लॉ इज नॉट कैरिंग योर कर्मा। ठीक है ना? तो पहले हमको, इधर चैरिटी बिगिंस एट होम, हीलिंग इज वेरी सेल्फिश। ये हमको अपने लिए कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है? सो यू हैव टू डू इट। हाउ ऑफन शुड वी नीड टू डू दिस प्रैक्टिस? कभी कभी एक बार से काम हो जाता है। इट इज नॉट लाइक हाउ मच यू डू नीड टू डू। ठीक है? बट इफ एवर यू फील दैट आई नीड टू वर्क ऑन इट, इट इज योर इंट्यूशन विल टेल यू। ठीक है? आई वॉज नॉट डूइंग इट फॉर लाइक इन माई एंटायर जर्नी ऑफ हीलिंग, आई वॉज नॉट डूइंग इट मच, बट एकदम से मुझे अंदर से आवाज आई कि कुछ तो, आई बीन वर्किंग ऑन माई सेंटर्स, आई एम वर्किंग ऑन माई ऑल दीज थिंग्स। मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम क्या फंसी हुई थी कि आई वॉज नॉट गेटिंग paid, or I'm not getting that much of money that I was working for, not working for, मतलब जितना मैं काम कर रही थी उसके एवज में उतना आ नहीं रहा था। ठीक है? तब मुझे लगा कि कुछ तो है जो रोक रहा है, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, एंड विद इन लाइक मंथ्स, मैंने शेयर किया था अपने ट्राइब में दैट आफ्टर वर्किंग ऑन दिस, whatever I was working earning in a year, I started earning in that in a month. इतना ड्रास्टिक चेंज। What I used to earn in a year, I started earning that in a month without putting much effort. People started to come in, opportunities started to come in, right kind of a buyer started to come in. People were ready to give their money to me for doing my courses. You know, I've just raised my prices for my one-to-ones and people were ready to pay. How often do you feel it right कि कोई आपको 1.5 घंटे के सेशन के लिए 27,000 रुपया दे? Is it easy? Is it easy?
नहीं, and I've been getting those kind of people. ठीक है, then I was getting a lot of people from industry, film industry, TV industry, who were saying कि we know your knowledge and we want this. किसी ने हमको ये बताया कि अपने घर में ये क्रिस्टल रखना है, I want you to get it for us. मैंने कभी नहीं बोला था कि I can get it, ठीक है ना? They said you are a healer, you know it. आप बताओ कहाँ से लें, और if you can get it and energize it for us because we trust it, you can do this. I was like, हैं ये कहाँ से आया? ठीक है, so you start getting those kind of a ask from people, and it just started to work out. Whatever I'm teaching because I personally got results of that. So that is why I've included it in this. ठीक है, got it. So आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी. मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ दिन तो बहुत लग के ये प्रैक्टिस की और मैंने सीखी भी, जिन जिन टीचर से मैं सीख रही थी, जो मेरे गुरु थे, और इंट्यूटिवली ऑल्सो आई स्टार्टेड आस्किंग फ्रॉम दोज एनर्जीज कि भाई बताओ कैसे करें. मैं बता रही हूँ आपको, मैंने सबसे पहले जो ये एक्सपीरियंस किया, मेरे यहाँ पे लाइक मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही थी. सो मच ऑफ पेन यहाँ पे, एज इफ जैसे अंदर से कुछ जकड़न है. ठीक है, द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन एंड अगेन, टुडे आई एम नॉट फीलिंग एनी पेन. मेरे को तो क्लियर हो गया है कि ये क्या था. बाकी हाथ में कहीं नहीं हो रही, सिर्फ एक जगह पे क्यों हो रही है, ऐसा मैंने क्या कर दिया. ठीक है, अंगूठे में वो फिर भी चल सकता है कि किचन का कोई काम किया होगा. यहाँ पे पेन होना, आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है, एंड देन नाउ इट्स ऑल गॉन. राइट. सो आपकी इंट्यूशन बताएगी. जिनके हैवी कर्मस होंगे उनको अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा, जिनके नहीं होंगे उनको नहीं जरूरत होगी. यस यस प्रियंका. अलोहा मैम। हेलो हाँ. आज मैंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन कल के सेशन के बाद मेरे बेली बटन पे अभी भी पेन है। हम्म. वोमिटिंग हुआ है, बहुत कुछ चीजें निकली है मेरे को कभी वोमिटिंग नहीं होता है। ओ भाई इनको मत डराओ, ये बेचारे तुम वेल्थ हाँ एक्टिवेशन की बात कर रहे हो हाँ। इनको मत डराओ. ये नए हैं अभी. नहीं, बट बहुत बहुत रिलीफ मिला है बाद में, हीलिंग करने के बाद बहुत रिलीफ मिला है। वेरी नाइस. और जस्ट थोड़ा सा बेली बटन में थोड़ा पेन है, तो जस्ट आपको पूछ रही हूँ क्या करूँ मैं। रिलीज इट. टैप इन. ओके। टैप हाँ इन आउट, न टैप आउट करो कि जो निकल गया अच्छा है, जो नहीं निकला आई एम एनर्जेटिकली सेंडिंग इट आउट. ठीक ओके है. या ओके। और थैंक ये लोग लड़ जाएंगे, आए पेट वेट दर्द होता है क्या, ये होता है. ठीक है, दीज आर सम डीप स्टफ दैट वी आर डूइंग. यस यस निधि. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सा था सेक्शन। रात को मतलब नींद बहुत अच्छी आई अच्छा बढ़िया. मुझे। जैसे हाँ, जैसे कि एकदम रिलैक्स टाइप में कह सकते हैं हम। हम्म. कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स बहुत अच्छा हुआ। सिर इस समय भी बहुत हैवी हो रहा है, सिर हाँ बहुत हैवी है। बताती हूँ उसके लिए क्या करना है आज. और देन हाँ, ये पेन है, ये मेरे पेन है। तो ये इंसिस्टल पेन है, तो आप कैरी कर रहे हो. आप इस आपको तो रिकॉर्डिंग इसका मिलेगी. मतलब वही है कि जो हाँ. मेरी ब्लॉकेजेस आ रही हैं मेरे किसी भी काम में, चाहे मैं मेडिटेशन में, अध्यात्म, यस जिसमें भी कहें, जो मेरे वर्किंग में आ रही हैं, तो वो ब्लॉकेजेस शायद वही यही कह रही हैं यस कि मैं यस इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा शायना जी, जो आना चाहिए मुझे। एग्जैक्टली. तो ओके। दैट वाज व्हाट आई वाज फीलिंग, इसीलिए मैं ये सिखा रही हूँ बिना मांगे. ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नहीं एनी इसीलिए कोर्स. नहीं, शायद वो ये इस समय चाहते थे कि मेरे लिए सीखना जरूरी है, तो आई बिल्कुल. हैव ज्वाइन। हाँ, एंड ये है ना, लोग क्योंकि बैठे हैं ऐसे इन ही सब नहीं ने. आई ना, आपका मैसेज इसलिए आया, लेकिन शायद जैसे कुछ चीज है ना जो मुझे आनी चाहिए थी, मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो कहते हैं यूनिवर्स अपने आप वो चीज हमें भेज देता है। तो कुछ चीजें रेजोनेट हो रही है मेरी आपसे। वेरी नाइस. और टैपिंग वाला बहुत अच्छा है। अच्छा एक चीज और, जैसे ये टैपिंग वाला आपने बताया, कल तो आपने बताया था पूरी बॉडी पे, हाँ मैंने हाँ. सुबह करके ही बैठी सारा, हम्म. रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा तक करके बैठी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने और दो ऊपर करे हैं, तब से वो हैवी हो रहा है। हाँ, तो फिर आपकी मेजर ब्लॉकेजेस यहाँ बैठी हैं. मैंने कल बताया था ना कि कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं. कार्मिक इम्प्रिंट्स मैंने बताए थे ओ- ना. तो आपके जो हाँ। पास्ट कर्मास के कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं वो यहाँ बैठे हैं. कोई बात नहीं, वो हम ओके। आकाशिक जर्नी में हील आउट कर देंगे. ठीक है ना. ओके। हमें ठीक है. टैपिंग ऐसे ही करनी है ना, पूरे सातों चक्र पे, यस या जैसे यस. अभी आपने दो ये बताई हैं, नहीं, जगह अगर आप दोनों लोअर एंसेस्ट्रल, से। अगर जिन लोग अपना एंसेस्ट्रल्स फील कर रहे हैं वो इस पे कर सकते हैं, सिर्फ इन पे, और इसमें हमारी इंटेंशन भी अलग है ना. पर जब हम डीपर हाँ क्लिंजिंग कर रहे हैं तो आप पूरा हाँ। सारे चक्रस पे करेंगे, वो तो ऑफ कोर्स सारी चक्रस पे ही करनी है.
तो मैं अगर करूँ तो डेली यूज में जो है वो सारे चक्रा पे करके करूँ ना, हाँ बिल्कुल रिलीज बिल्कुल। रिलीज रिलीज, है ना। यस। थैंक ठीक है जी, awesome, बढ़िया। ये जो बाकी के यहाँ बैठे ना, ये सबने भी ये बूट कैंप्स अटेंड किए हुए हैं। ये बूट कैंप से फिर लॉन्गर कोर्सेज में ही आए हैं। पर कितने लोग जेलस कर रहे हैं कि इनको पहले पहले गो में ही ये सब मिल रहा है जो आपको बहुत बाद में मिल। ठीक है। एंड आई थिंक वी नीड टू यू नो have a aloha feeling for them, है ना, that they are getting it in the very first go. Yes, because in our tribe we don't get jealous, we always say good for you. Right, aloha. Okay, so that was that. I hope it made some difference into your energy. Trust me, it will be. Both arm or just one. Do it for left only. ठीक है, यही पे करो। राइट में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज हम लेफ्ट इतना यूज नहीं, अच्छा अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप राइट पे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी एनर्जी क्लिनजिंग में या एनर्जी वर्क में कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो आपको डिफिकल्ट लगे। ठीक है, अगर आपकी बॉडी वो करने को रेडी नहीं है, मान लो आप लेफ्टी हो और आप इधर से काम कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, ठीक है, तो दूसरे पे कर लो, दूसरी साइड पे कर लो, ठीक है? कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और इवन चक्रा क्लींजिंग करते या टैपिंग करते भी जब आपको लगे ना कि थक गए, आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ना एनर्जी वर्क कैसे करते हैं जैसे किसी ने ना उनको कोई टास्क दिया होता है, जैसे कोई पहाड़ चढ़ना है। ये थोड़ी होता है। हमने अपनी बॉडी को ईज़ आउट करना है, ना कि उसको एग्ज़ॉस्ट करना है, ठीक है? ये याद रखना। कोई भी मेडिटेशन, कोई भी मंत्र चैंटिंग, कोई भी आपका रिचुअल है, कोई भी आपकी एक्सरसाइज है, तब कब तक करनी है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कितने रिपीट्स, कितना टाइम, जितना टाइम आपको इजी लगे। जहां पे आपको मुश्किल लगना शुरू हो गया, आप उल्टा कर रहे हो काम। ठीक है, हमको एग्जॉस्ट थोड़ी करना है अपनी बॉडी को, एग्जॉस्ट तो हम वैसे भी डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ईजिंग आउट योर एनर्जी, इट इज नॉट गिविंग पनिशमेंट्स। योग इज नॉट पनिशमेंट, मेडिटेशन इज नॉट पनिशमेंट, एनर्जी वर्क इज नॉट पनिशमेंट। जहां भी जाके वो आपको डिफिकल्ट लगे छोड़ दो, फिर कर लेना बाद में। समझ में आ गई बात? ठीक है, आई हैव लेग पेन समटाइम्स, व्हाट इट कुड बी द रीजन, वील गेट इट आउट इन द आकाशिक वाला, कहाँ से आ रहा है वो पेन। ठीक है, chronic pains sometimes they come from the past, so don't worry, we'll work on that also. ठीक है, I hope today's session made some sense to you, right? So everybody write down in the chat box what is your feedback on today's session so that we can go ahead with another beautiful things. ठीक है, so that was all for today for your ancestral wounds clearing. Very nice, superb. ठीक है, तो अब आज का दिन करिए सब आराम। आज कोई क्लास नहीं है इवनिंग में, उसका रीजन ये है आज मेरे फादर इन लॉ का हैप्पी बर्थडे है, तो आज कोई क्लास नहीं है इवनिंग में। ठीक है, आज हम पार्टी करने वाले हैं, तो बाकी क्लासेस विल रिज्यूम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, मॉर्निंग वालों को कल मॉर्निंग में मिलूंगी, इवनिंग वालों को मैं इवनिंग में मिलूंगी। जिन जिनकी आपको पता है आपकी क्लासेस के जो जो शेड्यूल्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, सो यस, थैंक यू सो मच। सो यस, that was all for today. I hope it made some sense to you. Just do this, just allow your energy body to take the lead. आपके दिमाग ने बहुत लीड ले लिया है आपके इस लाइफ टाइम में, और अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है, नाउ लेट योर एनर्जी बॉडी टेक द लीड। ठीक है, और आपकी एनर्जी बॉडी इज इंटेलिजेंट देन योर माइंड। ठीक है, योर गट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं ना, एक्चुअली गट इज अवर सेकंड माइंड, गट इज अवर इंट्यूटिव माइंड। ठीक है, अगर आपका ये वाला मंकी काम नहीं कर पा रहा ना, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शान हो आप लोग, बहुत काम कर रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस है ना, फिर भी अगर कुछ नहीं बना पाए ना इस लाइफ में अच्छा, तो नाउ आई वांट यू टू टेक लीड। ठीक है, आपके गट को लीड लेने दीजिए, और जो आपका गट कहे, जो अंदर से एनर्जी आए, जो अंदर से सही लगे, उसको चूज कीजिए। अब देखिए कैसे रेफरेंस आएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर गाइडिंग अस अगेन एंड ओके या थैंक यू सो मच। अच्छा, पूजा, ब्रदर्स बर्थडे,
Okay, chalo. A lot of blessings to your brother also. Thank you so much. I'll see you. Bye bye. Have a great day. Enjoy your day with ease, joy, and glory. Take care. Bye bye.